So we welcome you all to this unique seminar. So in the past, we have got a lot of demand for this kind of program where we can focus on our code of ethics. As you all must be knowing that there is a new code of ethics which will be mandatory from 1st July 2020. So it is very important that we understand that. और जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं रामायण महाभारत के अंदर तो कोड ऑफ एथिक्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोफेशन. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सीएनसी रूट ने हमारे ऊपर कोड ऑफ एथिक्स हम लोग को फॉलो करना है. इट इज बेनिफिट, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ मेंबर ओनली. So we have very renowned faculty with us to take us for the session of 1 hour. So I welcome AP Singh ji to the session. हमारे साथ हैं CA विजय गुप्ता जी और पंकज गुप्ता जी. CA Vijay Kumar Gupta ji, he is a member of NIRC of ICI, Regional Council of NIRC of ICI, and he is also the founder member of Chamber of Chartered Professionals. So I welcome you Vijay Gupta ji. और हमारे साथ हैं पंकज गुप्ता जी. Pankaj Gupta is a treasury in Regional Council of NIRC of ICI. So we welcome you Pankaj जी. So मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय गुप्ता जी से, जो कि प्रेसिडेंट है हमारे चैम्बर ऑफ चार्टर्ड प्रोफेशनल्स के लिए और जो सूत्रधार हैं इन सब प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए. सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंह साहब को इंट्रोड्यूस करें और प्लीज टेक ऑन द प्रोसीडिंग्स फर्दर. हाँ, थैंक यू सौरभ जी. गुड इवनिंग टू एवरीवन. आज हम कोविड-19 की वजह से वेबिनार ऑनलाइन कर पा रहे हैं और जिस वजह से हम अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं. तो हमारा ये आज का सेशन 5th सेमिनार हम करवा रहे हैं ऑनलाइन. और जूम के ऊपर काफ़ी जो न्यूज़ में आ रहा था कि इसको अकाउंट को हैक किया जा सकता है. सो डोंट वरी, वी आर यूजिंग द पेड अकाउंट ऑफ जूम. एंड आज के टॉपिक जैसे कि कोड ऑफ एथिक्स 2019 एंड पुराना जो कोड ऑफ एथिक्स था 2009, इसके अंदर भी काफी डिफरेंसेस चेंजेस आ चुके हैं. तो हमारे साथ में AP सिंह जी एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर हैं डिसिप्लिनरी मैटर में. ही इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम कोलकाता एंड हैंडलिंग वेरियस रेगुलेटर एंड डिसिप्लिनरी मैटर इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वेल एज अदर प्रोफेशनल बॉडीज एज वेल इन दिस मैटर. सो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा मैं AP सिंह जी को ही ट्रांसफर कर रहा हूं मैटर. ओवर टू AP सिंह जी. Thank you very much, Vijay ji, and all the organizers of this wonderful platform जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया so that I could talk to my friends and express some of my views. Before I start, I make it clear that any reference to any entity, any other corporate body or any firm with which I may be professionally working will not be made in this entire webinar, and any such reference made has not been provided by me. I am not aware how the organizers are even aware. I will not even say whether that is correct or not. That does not belong to the realm of this webinar. So let's start. Definitely, it's my apology. Right, that's fine. So अभी ऐसा है कि मेरे पास जो एक सूची भेजी गई, एक लिस्ट भेजी गई that these are the important issues that we would like to discuss. उसमें सबसे पहला पॉइंट था, and we will come to Code of Ethics 2019 because that's going to be the crux of the issue. There are some there are radical changes, not only single, radical changes in the Code of Ethics 2019 as compared to the other code. Code of Ethics 2019 is coming almost at par with the ISBA code of 2018. हम global standards पे as far as the code more or less आ जाएंगे. कई matters में हमारा code शायद उन global standards से भी ज़्यादा strict रहेगा. And ये issues जिस तरह से हमारे देश में practice होती है, and to all the practicing professional accountants, to all the firms, this is going to genuinely redefine the way we practice our profession. And I really mean every word of what I'm saying, and we will take up issues of that. लेकिन जो एक matter सबसे पहले मेरे को refer किया गया as a point which I was told as a starting point is, what does professional or other misconduct mean? Professional or other misconduct की definition जो है Chartered Accountants Act Section 22 में contained है. Section 22 एक छोटा सा section है और वो ये कहता है कि हमारे Chartered Accountants Act has got two schedules, Schedule 1 and Schedule 2.
and both the schedules have certain parts. One of them has got 3 parts, one of them has got 4 parts, and उन एक-एक part में कई clauses हैं, यानी कि वो instances हैं, वो issues हैं जिनको लेकर के professional misconduct हो सकता है. यानी if the act or omission of any professional accountant falls within any of the clauses of any of the parts of the 2 schedules, that can constitute professional or other misconduct as per section 22. लेकिन section 22 इसके साथ साथ एक और बात भी बहुत important बोलता है, and वो ये है, but nothing in this section shall be construed to limit or abridge in any way the power conferred or duty cast on the director discipline under subsection 1 of section 21 to inquire into the conduct of any matter of the institute under any other circumstances. यानी कि जो कुछ भी उन clauses में लिखा हुआ है of the various parts of the 2 schedules, अगर कुछ ऐसा हो जिसमें कि वो उन clauses में fit नहीं कर रहा हो, फिर भी if the director discipline believes that this constitutes professional or other misconduct, we will come to the words professional or other misconduct also, still the matter can be initiated, disciplinary proceedings can be initiated against any professional accountant. So the 2 schedules, हालांकि 99% of the matters relate, yeah, even more than 99% of the matters relate to what is contained in the 2 schedules. But the act clarifies that should there be any such other circumstance, the word is any other circumstances, should there be any other circumstances which are not covered by any of the clauses of the various parts of those 2 schedules, the director discipline is still at liberty to initiate disciplinary proceedings. Number 1. अब professional misconduct, इसकी definition हमें कहीं मिलती नहीं है, except for the fact that एक landmark judicial pronouncement है, Somnath Basu versus Council of ICAI. It's one of the landmark pronouncements. उसमें कहते हैं, para 61 of that judicial pronouncement states, misconduct arises from ill motive and mere acts of negligence. Innocent mistakes or errors of judgment do not constitute the misconduct. यानी कि ये order बहुत पुराना है. एक तो बहुत समय निकल गया, इसकी applicability with the change in the statutes, with the change in the requirements and the duties and the obligations of the auditors, that has to be always kept in mind. That backdrop can never be ignored. But certain important principles are being laid out here. The principle that is being laid out is mere ill motive and mere negligence does not constitute. ये word negligence को इसलिए deal कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत important clause है जो कि clause 7 of part 1 of the second schedule है, gross negligence का clause. अब gross negligence is not defined anywhere. So what does it mean? Gross negligence means any kind of culpable negligence. An institute की आप commentary अगर उठा के देखें code of ethics की, उस commentary के chapter में there is one sentence, a very short sentence, which is the key sentence which says negligence per se does not constitute gross negligence. यानी कि even the institute's guidelines, not the guidelines, even the commentary contained in the code of ethics publication issued by the institute, the 2009 version, includes this particular sentence: negligence per se does not constitute gross negligence. This is what is meant to be introduced in this para 61 of the Somnath Basu case. लेकिन इसमें एक और एलिमेंट है जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है errors of judgment do not constitute professional misconduct. ऑडिटर जो भी करते हैं अपने सारे प्रोफेशन में, अपने सारे conduct of the engagement में, रिपोर्ट जो भी दी जाती है, ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, all of that is professional work, and in that professional work an auditor is very often, more often than not, required to exercise what is called professional judgment with skepticism. ये दो words बहुत important हैं. Professional judgment, दो combinations, professional judgment and skepticism. Now professional judgment कहते किसे हैं? Professional judgment is the judgment that is made by the auditor
based upon the work that he has done, the requirements of the auditor in view of the various standards from the accounting side and the auditor's responsibilities, the standards of audit. And then if that individual has applied his mind, and in applying his mind has thereafter come to certain conclusions, and those are reasonable conclusions, and us conclusions के बारे में Code of Ethics 2019 एक particular concept introduce करता है जिसे third party test कहते हैं, यानी कि that takes care of the third party test. Third party test is, what it means is, any third party who may not be a professional accountant, on the basis of the similar circumstances and similar documents and explanations available to him, what would be the judgment found by that third party. अगर वो third party की judgment भी वैसी ही similar होती, तो ये third party test हम pass करते हैं. So उन सारी चीजों को देखते हुए, the requirements will be under the statute, will be under the standards, maybe under any other requirements of the obligate of any regulator, and उन सारी चीजों को देखते हुए जो काम किया है, and that work must be evidenced. And audit evidence के बारे में, the standards make it very clear that the audit evidence must be of the quality that any other auditor who was otherwise not involved with this particular engagement in future should be able to look at this documents and be able to understand and come to similar conclusions. ये आप audit evidence का standard उठा के देखें, तो audit evidence भी उस quality का है. Then if the mind is applied and that it may be discussions taking place, the entire process has to be documented. The application of mind must become visible from the working papers. All discussions and important discussions, there will be some oral discussions also, but the important critical issues must be documented, including the discussions within the engagement team and the discussions between the engagement partner and the quality control reviewer, wherever a quality control reviewer is required to be employed, और उसकी हम बात भी करेंगे. तब उस सारी चीज को लेकर जब वो judgment form होता है, उसे हम professional judgment कहते हैं, and the auditor keeps one's mind open. Mind कभी भी close नहीं करता है, objectivity को compromise नहीं करता है, independence exercise करता है. Objectivity, independence and fundamental principles जिसको हम refer करेंगे, if he takes care of all of that, that is this kind of skepticism that is required, then we can say that the judgment has been exercised. And फिर अगर judgment गलत भी है, इतना होने के बाद अगर judgment गलत भी है, we can definitely go back to the Somnath Basu case. The words that are used, errors of judgment do not constitute professional misconduct, and that can be a basis of good defense for any professional accountant. इसमें एक चीज, आजकल अगर आप इंडिया टुडे NDTV देखते हैं, तो प्रणय राय लास्ट 20-22 दिन से उनका एक टैगलाइन है, जो टैगलाइन दिन में कम से कम 100 बार वो प्ले करते हैं NDTV पे, and that is what it is. He says, WHO says 3 things: test, test and test. मैं आपको कहूंगा, जिस युग में हम अब आ रहे हैं, and Code of Ethics 2019 का युग आ रहा है, and उसके पहले हमारे standards already हैं, and the expectation from the professional accountants is rising, और हमारे, other than the institute, other regulators are also becoming active. For example, NAFRA, it is becoming active. Taking all of this into consideration, there are 3 things that you have to keep in mind. That's my way of looking at it. Number 1, documentation. Number 2, documentation. And number 3, documentation. It's going to be all about documentation. It's not that हम काम नहीं करते हैं, and I'm referring here mainly to the small and middle firms. What is not documented does not mean कि वो काम नहीं किया है, but what is not documented does not, it definitely means कि उसका evidence हमारे पास नहीं है. अगर evidence नहीं है तो हम उसे prove नहीं कर सकते हैं. हमारा professional judgment हुआ है, हमारा application of mind हुआ है, हमारी duties हमने exercise की हैं. We can never come back to that conclusion. We cannot defend any person. You cannot defend yourself if you are charged for professional or other misconduct. Now that is the key.
and the documentation requirements are extremely clear in each of the standards of audit. आप standards of audit पढ़ें, हर चीज के लिए standards हैं, और हर चीज में जो standards में documentation paragraphs are there, those documentation I would say are minimum documentations. आप उससे ज्यादा रख सकें वो भी रखें. हालांकि audit documentation के बारे में standard also makes it very clear कि आपका जो final opinion है उसके रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंटेशन आपके होने चाहिए. सुपरसीडेड आइटम्स के बारे में अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी रिटेन करते हैं, दैट्स फाइन. द स्टैंडर्ड अलाउज इट. इन वन ऑफ द एप्लीकेशन पैराग्राफ्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू द ऑडिट एविडेंस, दैट इज परमिसिबल. बट देन इशू इज, जो आपने फाइनल कंक्लूजन किया है उसका आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. हम जो चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हमने काम किया है, और हमने काम किया है और हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे हम आने वाले युग में प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हमने काम किया है. दैट्स द की. इट्स नॉट कि काम नहीं हो रहा है. आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबॉडी, काम नहीं हो रहा है. आई एम श्योर एवरी फर्म, एवरी प्रोफेशनल अकाउंटेंट वर्क्स, डज वंस बेस्ट, quality is maintained. But here the question of documentation, and I'm just repeating once again and I won't come back to it, document, document, document. Why I am saying so? The reason why I'm saying so is कि नेक्स्ट इश्यू जो मेरे को दिया गया था, ये मिसकंडक्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसमें वर्ड्स हैं प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट. अभी जी अदर मिसकंडक्ट क्या बना? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो समझ आता है. क्लॉज 2 of part 4 of the first schedule says that a chartered accountant, whether in practice or not, can be held guilty of other misconduct if in the opinion of the council the said member has brought disrepute to the profession or the institute. यानी आपने अगर प्रोफेशन की और इंस्टीट्यूट में बदनामी की है, you have done something, or any professional accountant has indulged in any such act or omission which results in disrespect, which becomes a matter unbecoming of a member of the institute, then you have brought disrespect to the institute and the profession and you can be held guilty. इसके बारे में कई एक अलग-अलग ओपिनियन थे. And it must be clarified that some judgments of the courts have settled this matter beyond doubt. And हालांकि I mean I was one person who was thinking ऐसा judgment नहीं आए, लेकिन we have to respect Apex Court का judgment है. Apex Court का स्पेशली गुरविंदर सिंह केस में जजमेंट. गुरविंदर सिंह केस वो है जहां उनके ऊपर he was charged with some misconduct relating to matters which did not relate to the professional duties. यानी प्रोफेशनल एंगेजमेंट वहां इन्वॉल्व ही नहीं था, बट ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सिंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and you may have knowledge about certain accounting, auditing, financial and other things, even if you are not involved in a particular transaction as a professional accountant, आप किसी एंगेजमेंट में नहीं हो, आपको किसी ने हायर नहीं किया है, आप किसी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, but if you have done something which is unfair, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी तो अदर लॉज में आएगी ही आएगी, लेकिन यू ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन एंड द इंस्टीट्यूट एंड यू कैन बी हेल्ड गिल्टी अंडर अदर मिसकंडक्ट. हाई कोर्ट ने ये सेटल कर दिया था कि वो मिसकंडक्ट में, वो अदर मिसकंडक्ट में आप चार्ज नहीं कर सकते, आप सिर्फ वही चार्ज कर सकते हैं जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट से रिलेटेड होगा. यानी कि अगर प्रोफेशनल एंगेजमेंट है ही नहीं, कोई आदमी चला जा रहा है, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया, I mean, I'm stretching it a bit far, but I do not know. It can happen. Supposing you are in an accountant is in a large gathering of professionals where there are professionals from various other bodies, and that person misbehaves with a particular woman. Outdoes the modesty of a particular woman. According to me, the reading of the act as it stands today and the judicial pronouncement as it stands today, if the matter gets escalated, that person, individual, can be held to be guilty of other misconduct. वो किसी पार्टी में है, उन्होंने ऐसा बिहेव कर दिया, लेकिन वो अगर मैटर इतना फ्लैश हो जाता है जिससे कि प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट की बेइज्जती होने लग जाती है, even if that's got nothing to do with a professional engagement, nothing to do with a professional engagement. कोई किसी की दुकान में है, ऑफिस है, कोई रेंट पे है, रेंटल के उसने डॉक्यूमेंट फर्जी बना लिए, नकली फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बना लिए, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द प्रोफेशन, नथिंग एट ऑल, लेकिन उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी वो अलग है. ये नहीं कि प्रोफेशनल लायबिलिटी, प्रोफेशनल यहाँ पे देख लेने से कोई क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी कहीं डिस्चार्ज हो जाती है, नहीं. लेकिन इफ दिस मैटर गेट्स एस्केलेटेड, this comes here,
and the institute feels that this is bringing disrepute to the profession of the institute, under the current laws and the judicial pronouncement as it is today, the person is liable for other misconduct. So this is other misconduct. तो हमारी और सर ये हाँ जी सर मैट्रिमोनियल जो मैटर है, किसी का डाइवोर्स का मैटर चल रहा है और वो काफी एस्केलेट हो गया, और उसके चलते अगर वाइफ हस्बैंड की हस्बैंड वाइफ की कंप्लेंट करती है, वो तो मैटर कोर्ट में है. देखिए वो मैट्रिमोनी, वो तो हमारे इंस्टीट्यूट के क्लॉजेस में अदर है कि अगर somebody is held guilty for any criminal offense 6 महीने से ज्यादा है, 6 महीने से कम का है, और उसके हिसाब से तो फिर बाद में वो गिल्टी हो ही जाएगा, इवन प्रोफेशनल गिल्टी होगा. दैट इज देयर अंडर अ सेपरेट क्लॉज. अब मैट्रिमोनियल में कोई किसी के ऊपर लांछन लगा भी रहा है, बट देन यू नो ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया सा बन गया है. वो लांछन लगा भी रहा है, लेकिन वो लांछन अगर प्रूव होता है, वो लांछन अगर प्रूव होता है तो ये डेफिनेटली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बन जाए. प्रोफेशनली बन जाएगा, अदर भी नहीं बनेगा. अदर मिसकंडक्ट. लेकिन वो चार्ज तो उसी में ही होगा सर. चार्ज तो सेक्शन 21 में ही है सारे के सारे प्रोसीडिंग सेक्शन 21 में ही है. सो दिस टेक, मैंने आपको बताया ना, आपने जो आज टॉपिक किया है बहुत ओपन आउट कर दिया है. सो दिस इज व्हाट इज प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट. कोड ऑफ एथिक्स की ब्रीचेस ये हैं कि कोड ऑफ एथिक्स को हमने क्वालिफाई करने के बाद एक किताब समझा, जो किताब हमको मिली है, ग्रीन रंग की किताब है, उसे बंद करके रख देना है. ज्यादा सवाल इसके बारे में पूछे भी नहीं जाते. फाइनल में भी बहुत कम से नंबरों के सवाल पूछा जाता है, तो थोड़ा सा पढ़ लिया है, कर दिया है, कहानी खत्म. बट आई टेल यू टुडे, the profession is going to be run by what is contained in that green book. It is going to lay down the parameters. There is a question, there is the understanding of the conceptual framework. The conceptual, everything will have to be dealt with in terms of the conceptual framework. We'll come to it. Basic principles and threats. We will have to examine, हम कुछ भी कर रहे हैं, क्या हम वो बेसिक प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. अगर बेसिक प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स हैव बीन लेड अप सो मच, एंड अदर स्टैंडर्ड्स के भी स्टैंडर्ड्स के यू नो द बार हैज बीन रियली लिफ्टेड हाई. सो द पॉइंट इज, कोड ऑफ एथिक्स इज नॉट ऑप्शनल. ये नहीं है कि मेरे को तो जो एक्ट में कहा गया है वो कहा गया है. इट इज नॉट द थिंग. आप 100.3 देखिए. A professional accountant shall comply with the code. A professional accountant shall comply with each of the fundamental principles. And इस code में explain कर दिया गया है that जहां shall है, ये code of course 1 July 2020 से applicable हो रहा है, but then we have a code before that which is not as wide as this is, but then this is on from 1st of July and it's final. It's on from 1st of July. I'm sure COVID is not going to impact the implication or the implementation of the code. So yes. Shall, and they have explained what jab shall word use hota hai, there is no debate. This is mandatory. This has the power of law. This has got the force of law. And तीन चीजें एक समझ के रखें. एक code of ethics, एक concept है of SQC1. SQC1 जो के कोड, जो के स्टैंडर्ड्स की किताब के स्टैंडर्ड शुरू होने के पहले एक SQC है, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल्स. SQC1, it is 100% applicable. And SQC1 is applicable to every firm. The standards require कि हर firm के अपने standards होने चाहिए. It says, para 3 of that SQC1 says the firm should establish a system of quality control to comply with professional standards, and it applies to every firm. I am not sure कितने firms ने अपना SQC1 develop किया है. The standard also makes it clear. इसकी डेवलपमेंट की डेप्थ विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड कितनी बड़ी एंड किस तरह के असाइनमेंट्स आप लेते हैं, कितनी बड़ी फर्म है, सो एंड सो फोर्थ. बट इट अप्लाइज टू ऑल द फर्म्स. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट नॉट अप्लाइंग टू ऑल द फर्म्स. इसका डेवलप करना, इसकी नॉलेज हर पार्टनर को होनी चाहिए. इसकी नॉलेज आपके जो एंगेजमेंट टीम में जो भी स्टाफ करता है उसको होनी चाहिए. और इसका जिम्मा is lies as per para 9 of the SQC1 with the chief executive officer or the managing partner of the firm. उसका ये जिम्मा है. आप एंगेजमेंट पार्टनर नहीं हो, लेकिन आपका SQC1 नहीं है, इसलिए पॉलिसीज का उल्लंघन हो गया. Whoever is the managing partner or the chief executive of the firm becomes responsible for it. आपको कोई एंगेजमेंट ऑफर हुआ है. Now this has got a lot to do with the client acceptance, which we will also deal with it when I come to, when I hope I have so much time, when I come to Code of Ethics 2019, but when I am at SQC1, SQC1 makes it very clear. दो तरह के लोग हैं, एक स्टाफ और एक पार्टनर्स.
there is a word called personnel. Personnel को define किया है in the defining section of SQC1, and they say personnel includes staff and partners. That's all. Chapter closed. यानी कि कोई भी engagement लेने के पहले आपको ये देखना है कि आपके पास वैसे personnel यानी कि staff and partners में मिला के हैं कि नहीं, जिनके पास वो technical expertise है, that they can assume that responsibility, they can take up that particular engagement, they have that experience, they have that knowledge. If they do not have it and you are still accepting that engagement, thinking कि मैं बाहर से hire कर लूंगा hands, actually you are in non-compliance with SQC1. You can definitely rely on experts. आप experts के ऊपर rely कर सकते हैं, आप experts की help ले सकते हैं, auditors experts हो सकते हैं, ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स का अपना अलग स्टैंडर्ड है, उनके ऊपर रिलायंस करने के पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, दे आर स्पेल्ड आउट इन दोस स्टैंडर्ड्स, ऑल दैट इज फाइन, बट फॉर द मेजर पार्ट ऑफ इट, फॉर द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट, वेदर और नॉट दैट एक्सपर्टीज rests with the personnel, which means the partners and the staff of the firm, is very important. हर साल में at least once, that's para 23. Para 23 says हर साल में at least once आपको उनसे रिटर्न कंफर्मेशन लेना है that they have understood the policies and उनका इंडिपेंडेंस कहीं भी इम्पेयर्ड नहीं है. रिटर्न कंफर्मेशन उनसे लेना है. इंडिपेंडेंस इम्पेयर्ड नहीं है, पहले उनको इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट्स समझने पड़ेंगे. वो इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट्स आपके SQC1 वाले प्रोसीडियर्स एंड पॉलिसीज में होने चाहिए. उसके हिसाब से एटलीस्ट वंस आपको वो उनसे अंडरटेकिंग भी लेना है. देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स to take care of the familiarity threat. In the matter of skepticism, familiarity threat will also be very important. Same banda karte ja raha hai. It says auditor, even before the Companies Act brought it on, SQC1 was still alive with the concept of auditor rotation. We were bound by it. Hum mane, nahi mane, hum dilute karke mane, that is separate. SQC1 states that for every listed entity, a firm which is engaged must also engage the quality control reviewer. I'm not sure hum jitne bhi hamare middle and middle average and little more than average small size firms जो कि कई बार ऑडिट करते हैं, PSUs की ऑडिट करते हैं, other listed entities की ऑडिट करते हैं, whether we are using EQCR quality reviewer who can be within the firm, who can be brought from outside the firm, लेकिन उसकी qualifications हैं, उसकी independence होनी चाहिए, उसका काम होना चाहिए, उसका documentation होना चाहिए, उसके important point में discussions होने चाहिए with the engagement partner. बिना उसके discussions के and बिना all points having been clarified, the audit report must not be issued. SQC1 makes it very clear. I am not sure how many, इतनी दूर की बात तो it's a far-fetched cry, but how many of the firms are even using an EQCR for the listed entities? I'm not very sure of that. Now that is very important. It rests there within the SQC. And it says that all consultation, all these matters need to be documented. मैं ये documented की बात बीच-बीच में करता रहूँगा. All of these issues are required to be documented. And before you start any audit, we have a standard which is called SA 315, which is about risks of material misstatement, understanding the environment, understanding the internal control, to evaluate the risks of material misstatement. वो risks का assessment हुआ है कि नहीं, वो assessment का documentation होना पड़ेगा. उस documentation के base पे ही आप decide करेंगे कि आपका audit plan क्या होगा, आप किस तरह के procedures करेंगे, आप कितनी depth में procedures करेंगे. SA 315 के बाद में आता है SA 330. 330 में वो कहता है आप substantive procedures करेंगे या आप tests of controls करेंगे या आप उनका mixture करेंगे. उनका mixture कितना होगा, उसका expanse कितना होगा, आपकी audit engagement team का expertise level कितना होना चाहिए. All that will depend on your assessment which you have made under SA 315, and your assessment under 315 needs to be documented. And before you are drawing your audit plan and you're starting your audit procedure, SA 320 says materiality. हम कई बार कहते हैं, कई बार कुछ भी हो जाता है, हम डिफेंस में जाते हैं, सर दिस इज नॉट मटीरियल, वी आर सपोज टू बी लुकिंग एट मटीरियलिटी. फाइन, हम आगे कहते रहे हैं और मैं भी इसमें कई फोरम्स में इस चीज को प्रेस करता रहा हूं, लेकिन नाउ आई एम टेलिंग whoever comes to me, it's very important that this materiality will have to be demonstrated, and it will have to be demonstrated in compliance with SA 320.
ऐसे 320 कहता है पहले आप अपनी मटेरियलिटी स्टडी करो, एस्टैब्लिश करो, looking at the size of the entity, what is the materiality level, and then because your misstatements, and I'll just read out, ये material misstatements की जो बात है, ये material misstatements can be because of errors and frauds. Even errors can cause material misstatements. तो ये material misstatements कहीं contained नहीं है, यही चीज तो हमको certify करनी है. Material misstatement का कहीं definition नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे 320 के पैरा नंबर 2 में लिखा है, misstatements including omissions are considered to be material if they individually or in the aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of the financial statements. Yani, a particular matter by itself may not be material, लेकिन वैसे 10 मैटर जुड़ गए, in the aggregate तो material बन सकता है. So what happens is कि आपको पहले materiality establish हमको करनी है, वो करने के बाद में हमको एक और कॉन्सेप्ट है in SA 320 which is performance materiality. हमको performance materiality establish करनी है. The performance materiality will be lower than the otherwise general regular materiality, and उसके हिसाब से हम अगर काम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये हमने establish की थी, ये हमने स्टडी किया था, SA 315 का ये हमारा डॉक्यूमेंटेड है, SA 320 का डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद में हमने प्रोसीडियर्स परफॉर्म किए हैं, उस प्रोसीडियर्स परफॉर्म करने में ये हमारे पास में ऑडिट एविडेंस है. फिर एक चीज अगर हमारी पकड़ में नहीं भी आई है एंड या हमने इसके बारे में कंक्लूड नहीं किया है, जो के बाद में फोरेंसिक ऑडिट या डिटेल्ड ऑडिट या कोई फ्रॉड डिसाइफर होने के बाद में या फ्रॉड डिटेक्ट होने के बाद में वो चीज सामने आ रही है, we can still go back to that Somnath Basu case words, errors of judgment do not constitute professional misconduct, lekin that judgment has to be formed according to the rules. A judgment formed not according to the rules will not be the judgment based on which we can defend or you can defend yourself. So that is very important. So that is the breach of the code of ethics. We will talk to you. Difference between information and complaint. आज कोई भी मैटर है of professional misconduct या किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे लिमिट कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर अगर किसी भी और इंस्टीट्यूट के कंपनीज या कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के मेंबर्स अगर सुन रहे हैं तो हमारे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मोर और लेस, मैं वर्ड यूज करना मोर और लेस, टू अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट एक्सटेंट दे आर अ मिरर कॉपी ऑफ ईच अदर. May not be 100%, but an extremely significant extent they are a mirror copy of each other. So what happens is any matter can be initiated either as a complaint or as an information case. Complaint है, एक particular form है, उस form में file होना चाहिए, उसमें allegations होने चाहिए, वो allegations किस particular clause से relate करते हैं वो होना चाहिए, उसके साथ में जो material है वो material complainant देगा, तब वो matter शुरू होगा. Information है, if there is any information which comes in the possession of the institute either by post or by delivery, वो उनको deliver होती है to the director discipline at the disciplinary directorate, वो उसको देख सकते हैं और उसमें अगर वो information में believe करें कि हालांकि ये form 1 के अनुसार ये नहीं technically नहीं दी गई है, but it has otherwise got all the ingredients, वो एक information case भी शुरू कर सकते हैं. Now ये information सर information के बारे में एक मैटर पूछना है. आपने कहा कि किसी पोस्ट से मिली हो या बाय मेल आई हो, अगर उसको न्यूज़पेपर से मिलती है तो या मीडिया से, मतलब उसको किसी ने भेजी नहीं है, क्या वो अपने आप मीडिया से उठा के या न्यूज़पेपर से उठा के? The institute's view is that in the public interest, अगर उनको न्यूज़पेपर से भी मिली है, उन्होंने मैटर्स को इनिशिएट किया है. ऐसे कई मैटर्स हैं जिन्होंने उसके बेसिस पे भी इनिशिएट किया है. It can however अभी जो recently matters just like PMC Bank, Yes Bank. It can however be contested. The matters do come up for contest before the courts of law, and more specifically on the information coming out of the press, newspaper reports. In my opinion, the matter has not reached any finality under any court. But the institute, so better don't get into the mess. So and अगर शुरू होता है, अगर आप उसका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह दे सकते हैं, तो मैं तो कहूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन देकर के वो मैटर को आप, अगर कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट है खत्म करा सकता है तो उसे खत्म करा देना चाहिए. आप कैविएट देते रहो कि आप ये शुरू कर रहे हो, फिर भी आप प्रेस के ऊपर रिलाई कर रहे हो, रिपोर्ट्स के ऊपर में, प्रेस रिपोर्ट्स के ऊपर रिलायंस इज नॉट परमिसिबल. आप ये दे करके, लेकिन फिर भी अगर डिटेल दे करके मैटर खत्म कर सकते हो तो मैटर खत्म करो. लेकिन अगर जेन्युइनली आप पूछो
Well, a strict reading of the law is that there is a process through which the information needs to come. But the Institute's view is that the expectation from the members is immense. The society's expectations, the government's expectations, the stakeholders' expectations. इसलिए not minor, इस technicality में नहीं जाते हुए भी अगर कोई matter आता है तो हमें उसे professional misconduct का matter initiate करना चाहिए. Now, on a technical issue, the war goes on. But then this is the factual thing I've told you, that factually, I mean, the Institute does continue to proceed with those inquiries. I am not aware of any matter where the Institute has ceased to proceed with those inquiries, yet the technical issues continue to be pressed. In most of the cases, I would believe, I know some of them, but I don't know all of them. I know a lot of cases where they continue to press for them. So that is the answer. I don't think we can deal any further about that here. And the authority to deal with the code of ethics now. We've got an institute who's our regulator. हमारा regulator हमारा institute है. हमारा preamble to the CA Act कहता है to regulate the profession of chartered accountancy in India. That is why the act has been approved. And उसके regulator के तहत हम chartered accountancy का profession करते हैं. Member कौन है, register कहाँ पे है, उसके कितने पैसे लगेंगे, उसकी फीस कहाँ जमा होनी है, क्या होनी है, वो member रहेगा, नहीं रहेगा, member नहीं रहेगा तो COP नहीं रह सकता, COP नहीं रहेगा तो practice नहीं कर सकता, कौन attestation कर सकता है, कौन attestation नहीं कर सकता. And plus ये code of ethics क्या है, हमारा act में वो जो 2 schedules हैं, सारे का सारा हमारा regulator institute है. But issue is, we do not have just one regulator. Now we have become answerable to multiple regulators, my friends. NAFRA is another regulator, very important, very big regulator in the times to come. Already starting with some of the very big cases. Section 132, Companies Act 2013, NAFRA rules of 2018, NAFRA rules of 2018 के अनुसार any of those large entities, उस rules में rule number 3 पढ़िएगा, large public interest entities. I'm using that word large and public interest. I can go into that particular rule 3, उसी में 1 घंटा लग जाएगा. So I'm not going in there. उस entities के audit reviews, accounting standards के reviews, and ultimately अगर कोई professional misconduct है कि नहीं, उसके against में भी matter initiate करना, and उसके against में penalties लगाना, and matter को take up करना. The powers have been vested in NAFRA. And if any matter is with NAFRA, the matter will not continue before any other body. So the point is, NAFRA is another regulator. आप कहते हैं उसमें भी code of ethics के लिए वो आपके खाली true and fair है कि नहीं, ये काम सीधा हुआ है कि नहीं, उसके लिए नहीं बात करेंगे. NAFRA तो code of ethics में दूसरों से ज्यादा जा रहा है. मेरा experience तो ये बताता है, NAFRA is looking into SQC1 in more details and its applicability than any other regulator. It is looking into the code of ethics issues in more detail, like the microscopic details that they are looking at it. There is one report only which is on the website of NAFRA. If you read that report, whatever form that it may be, I mean, itne detail mein with microscopic views, analyzing para by para, phrase by phrase, word by word. कई बार तो यूं लगता है कि practicality angle में है कि नहीं. But then they are a body regulator, so I should never be commenting about a regulator. That's what it is now. The matter is still reached a particular stage of formation of one particular report. But the question is, आज ये code of ethics का applicability, SQC1 का applicability, even NAFRA is going to look at it. It will be looked at even by SEBI. आज SEBI ने already तो एक particular decision दिया है, जिसके लिए एक High Court ने बोला कि पहले के ये decision को set aside कर दिया जाए, लेकिन Supreme Court has brought it back. उसके बाद में SEBI ने कई एक middle size firms को भी debar कर दिया from taking up the audit of certain listed entities. Apart from one of the SEBI is another regulator. हैं जी? हाँ, SEBI is another regulator. SEBI एक regulator, RBI एक regulator है सर. कई एक matters तो हमारे लिए भी regulatory हो रखे हैं. नहीं, RBI एक regulator है सर. So the point is, आज responsibility इतनी बड़ी होती जा रही है और इसमें कोई नई बात नहीं है. आज PCOAB is a model. आज ये NAFRA वगैरह का तो जो फॉर्मेशन भी हो रहा है, इट्स नॉट कि उसको कोई कॉपी कर रहा है, बट दे आर लुकिंग एट इट कि वर्ल्ड वाइड कैसा हुआ है. SOX एक्ट, सार्बन-ऑक्सले एक्ट के SOX एक्ट के बाद में वो सारे वहां पे चेंजेस आए हैं, PCOAB के फॉर्मेशंस हुए हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्न. यू कम अप टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड. दैट्स ओके, दैट्स वेरी फाइन. सो द पॉइंट इज, इट्स देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो that is where we are going. So those are our regulators, and how to respond to the complaints filed with the director discipline against any professional. I'll make it very short, swift. Take it very, very seriously. Do not take it कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी का जवाब देना है. Be very serious about it.
look at the technicalities, look at the facts, and look at the law. Look at everything. Make your responses as comprehensive as possible. Don't leave out raising a point on any technicalities. If there is something to be contested on facts, contest it. Something to be contested on law, contest it. Demonstrate that you worked as per the standards. And I am telling you once again, and this is purely out of experience that I'm telling you, that we've now come to a stage where everything that you say, it's got to be documented. आपके पास document होगा, वो prove होगा. आपके पास document नहीं होगा, वो prove करना मुश्किल हो जाएगा. आपने audit किया है, आप उस firm के small size, middle size firm है, उसमें 4 partner हैं, एक particular partner ने sign किया है, उसके साथ में एक और partner ने काम किया, उसके साथ में उनके अपने आर्टिकल क्लर्क्स ने काम किया, उसके साथ में कुछ एक और पेड स्टाफ था, उन्होंने काम किया. ये पूरी एंगेजमेंट टीम ने पूरा काम करके ऑडिट रिपोर्ट रेडी की है. अब देयर आर सो मेनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हिच नीड द साइन ऑफ बाय द एंगेजमेंट पार्टनर. दे नीड टू बी साइंड ऑफ बाय द एंगेजमेंट पार्टनर अंडर द स्टैंडर्ड्स. उस डॉक्यूमेंट में अगर एंगेजमेंट ये अप्रूव नहीं कर पाते हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर ने वो डॉक्यूमेंट देखे थे, वो डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में लगे हुए हैं. आई एम टेकिंग डॉक्यूमेंटेशन टू द नेक्स्ट लेवल नाउ. वो डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में है, लेकिन आपकी फाइल से ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रहा कि वो डॉक्यूमेंटेशन उस एंगेजमेंट पार्टनर ने देखा है. यानी कहीं उसका इनिशियल हो, कहीं उसका साइन हो, कहीं कुछ भी हो, उसकी मेल से कुछ आया गया हो, उसके यहां से कमेंट लिखा हुआ हो. अगर आपका ये डॉक्यूमेंट, अगर आपका ये प्रूव नहीं हो पा रहा, यू कैन स्टिल बी कॉल्ड अप. दे आर गोइंग इनटू दोज डिटेल्स. मैं नहीं कहता कि इन एवरी केस दिस इज हैपनिंग, but in big cases. I don't think this will happen in small and medium sized cases also. I don't think that will be the view that any regulator will take in case of small and not so big entities. But the point is, हमको काम करने की आदत है, एक हैबिट होती है. ये हैबिट हम अगर हम डाल लेंगे तो छोटा, मीडियम साइज, बड़ा एंटिटी इररिलेवेंट, हम वो काम करेंगे. हमको अगर ये पता है कि ये डॉक्यूमेंट हमको रिकॉर्ड में रखना है और ये डॉक्यूमेंट एंगेजमेंट पार्टनर के थ्रू जाना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट एंगेजमेंट पार्टनर का रिव्यू करना चाहिए, और एंगेजमेंट पार्टनर एक्चुअली उस मीडियम स्केल एंटिटी का तो जरूर वही रिव्यू कर रहा है, क्योंकि और कोई पार्टनर है ही नहीं जो काम कर रहा है, उसके बिना काम ही नहीं हो रहा. लेकिन उसमें साइन नहीं किया, इनिशियल नहीं किया, तो वो बाद में चैलेंज होता फिर. हालांकि ये चैलेंज छोटी एंटिटीज में नहीं हुए हैं, पर बड़ी एंटिटीज में हुए हैं. बड़ी एंटिटीज में ये चैलेंज हुए हैं. सो ये एक हैबिट है. ये हैबिट अगर हम कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट जो मैं बार बार बात करता हूं, उसको कर लें तो we will be very clear. Now I come back, before I go back there, for whatever time I have, I will deal only and only on COE 2019. सर, एक पॉइंट और, मैं ऑथोरिटी के अंदर हमारे मेंबर्स में कंफ्यूजन रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी, कि भाई डिसीजन कौन देता है, डायरेक्टर डिसिप्लिन देता है. ये कंफ्यूजन मेरे पास मेंबर्स की क्वेरीज भी आई है कि in how much time director discipline will pass the judgment. I've understood. देखिए जी, council is the apex body of the institute. Council is defined in section 2C of the institute. Council means the council of the institute. Simple definition है. Council means the council of the institute. Council का composition क्या है वो वहाँ लिखा है. Section 21 subsection 1 बोलता है the council shall establish a disciplinary directorate headed by a director discipline. यानी council एक disciplinary directorate तैयार करेगा. वो एक division है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, एंड अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 वो एक उसका एक हेड रहेगा, जैसे हेड ऑफ द डिवीजन होता है. उस हेड ऑफ द डिवीजन का नाम है डायरेक्टर डिसिप्लिन. डायरेक्टर डिसिप्लिन सारे मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट को एग्जामिन करेगा, इंक्वायरीज करेगा. वो इंक्वायरीज करने के लिए अंडर सेक्शन 21C the powers of the civil court also vest in the director discipline. The powers of the civil court vest in the director discipline, the board of discipline, and the disciplinary committee. Very important here, you didn't ask me, but let me tell you, the powers of the civil court do not vest in the council. The council is the apex body, but they do not vest in the council. They vest in the director discipline, they vest in the board of directors, and they vest in the disciplinary committee. Now I'm coming to it. अब मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल बताया था. अब कोई भी अगर आरोप यानी कि एलिगेशन रिलेट्स टू एनी ऑफ द क्लॉजेस व्हिच इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ओनली द फर्स्ट शेड्यूल, द मैटर विल बी अल्टीमेटली रेफर्ड टू एंड बी रिव्यूड बाय द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन. एंड इफ इट रेफर्स टू एन एलिगेशन कंटेन्ड इन द सेकंड शेड्यूल और अंडर बोथ द शेड्यूल्स, यानी कि अगर सेकंड शेड्यूल का एक भी क्लॉज है, चाहे दूसरे क्लॉज शेड्यूल के भी क्लॉजेस हों, इट विल गो फॉर रेफरेंस टू द डिसिप्लिनरी कमेटी. तो कोई भी जब कंप्लेंट होती है, इंफॉर्मेशन केस होता है, उसको शुरू होते ही
एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है या जिसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम रिस्पोंडेंट कहेंगे, फॉर द रिस्पोंडेंट टू सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट देखने के बाद में उसकी कॉपी जो है कंप्लेनेंट को भी भेजी जाती है। कंप्लेनेंट कैन फाइल अ रिजॉइंडर। रिटन स्टेटमेंट एंड रिजॉइंडर दोनों चीज पढ़ने के बाद में या एट एनी स्टेज डायरेक्टर डिसिप्लिन can ask for any further document or information from the complainant, from the respondent, or any third party. Thereafter, after review of the documents on record from the complainant, from the respondent, and or any third party, the director discipline is required to arrive at an opinion which is called a prima facie opinion, which must be an objective opinion. There are case laws. हाँ जी, मुझे लग रहा है ऐसा, ये लग रहा वाली बात नहीं है। आपको क्लियर कहना है कि मेरे को प्राइमा फेसी गिल्टी का केस यहाँ पे प्राइमा फेसी एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता है। इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, इट हैज टू बी अ रीजन्ड ऑर्डर। अगर रीजनिंग नहीं है, चैलेंज हो सकता है, दैट इज सेपरेट, लेकिन प्राइमा फेसी ओपिनियन आएगा। ये प्राइमा फेसी ओपिनियन फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास जाएगा। अगर वो नॉन गिल्टी हैं, ऑल प्राइमा फेसी ओपिनियंस विल गो टू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अगर वो गिल्टी हैं, देन फर्स्ट क्लॉज का होने से बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगा। सेकंड शेड्यूल का अगर एक भी क्लॉज होने से इट विल गो टू द डिसिप्लिनरी कमिटी। इफ दे अग्री विद द ओपिनियन ऑफ द with the opinion of the director discipline, the matter will go thereafter. The prima facie opinion will be conveyed to the respondent. The respondent will be given one more opportunity to file another written statement. Then the hearings will take place. The pleas will be placed. The witnesses may be called. Witnesses may be cross-examined or cross-examined. And फिर उसमें the committee or the board will arrive at their findings. How they will operate? ये एक rules हैं, एक प्रोसीडियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रूल्स हैं जो रूल्स 2007 में ले किए गए थे। बहुत लंबा सा नाम है, प्रोसीडियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट सो एंड सो रूल्स। सो पीओआई रूल्स इसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ऑफ द 2007। इनको एम्पावर किया गया है अंडर सेक्शन 21 सब सेक्शन 4 अंडर सेक्शन 29A। इनके अंडर में ये रूल्स हैं। दीज रूल्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ। The courts have also settled that strict adherence to those rules must be observed at all points of time. कई बार इन rules की strict adherence नहीं होती है तो वो और एक technical issues बनते हैं, those are separate matters. तो इस हिसाब से ये पूरा matter होता है, and then the findings are there, and then if the person is held guilty in the findings, then he is given one more opportunity to appear before the board of discipline or the disciplinary committee before the pronouncement of the punishment or before the award of the punishment. वो punishment होता है, जिसको punishment होता है, that person can again appeal under section 22G under the appellate authority, which is also under the Chartered Accountants Act. So that's the procedure in short. I mean इससे ज्यादा तो short में और क्या करें? So that's it. तो चलें सर code of ethics में for a few minutes। कोई और question अगर नहीं हो तो? Any other question from anybody? आपके कोई attendees का कोई question हो, नहीं तो for a few minutes क्वेश्चंस हैं विजय जी। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप क्वेश्चंस को वन बाय वन लें सर के साथ। सर एक रवि कुमार जी का क्वेश्चन है, whether a disciplinary director can call for documents or any complaint made against respondent or it is mandatory for complainant to produce document? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। फॉर्म आई में जिसमें कंप्लेंट होती है, उस फॉर्म आई का पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि आपने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, उस एलिगेशंस के सपोर्ट में आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आप एविडेंस देना चाहते हैं, वो एविडेंस और प्रूफ वहां पे अटैच करिए। सो द कंप्लेनेंट इज रिक्वायर्ड टू अटैच दोस डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कंप्लेंट। वो तो 100% एडमिसिबल एविडेंस हो गया। at the rejoinder or any other subsequent stage, अगर कंप्लेनेंट उसका अपना स्कोप ऑफ द कंप्लेंट बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ नहीं सकता है टेक्निकली, बिकॉज वो कंप्लेंट जो है वो फॉर्म 1 में ही इंक्लूड होनी, फॉर्म आई में ही इंक्लूड होनी चाहिए। फॉर्म आई कह लें, फॉर्म 1 कर लें, उसी में ही इंक्लूड होनी चाहिए। अब उसके बाद में डायरेक्टर डिसिप्लिन कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, वो डॉक्यूमेंट उसको फर्दर क्लैरिफाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट ओनली। उसके पहले कंप्लेनेंट के पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिसके बेसिस पे कोई उसे आप गिल्टी कर सकते थे। बेस्ड ऑन दैट डॉक्यूमेंट ओनली, जो कि थर्ड पार्टी से आता है, जो कि कंप्लेनेंट के पास में था भी नहीं, जिसका रेफरेंस भी कंप्लेनेंट ने नहीं किया, जिसके ऊपर कंप्लेनेंट ने रिलाई भी नहीं किया और उसने एलिगेशन लगाया था, डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैलेंज दैट इज इनएडमिसिबल एविडेंस, दैट इज इनएडमिसिबल एविडेंस। लेकिन आज कई एक चीजें हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ईयर प्रेफर किया हो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हो,
तो डायरेक्टर डिसिप्लिन कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेरे को कॉपी दो, या कोई भी और चीज की कॉपी भेजो, कोई वर्किंग पेपर की कॉपी भेजो, कोई एक सर्टिफिकेट की कॉपी भेजो, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो उसके साथ आएगा। लेकिन कहीं पर किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं है, अचानक कहीं से कोई डॉक्यूमेंट ड्रॉ आउट करके वो उस डॉक्यूमेंट को ले आए, डायरेक्टर डिसिप्लिन करते भी नहीं है ऐसा, किसी के पास टाइम भी नहीं है करने का, और वो ऐसा प्रावधान भी नहीं है टेक्निकली। सर एक क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सर एक क्वेश्चन है, क्या कंप्लेनेंट अपना क्वेश्चन अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर सकता है? 100%। हाँ, और क्या उसकी कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये रेज ऑब्जेक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल और कमिटी इफ एनी मेंबर ऑन द बेंच आर कनेक्टेड प्रोफेशनली और पर्सनली टू द मेंबर अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज फाइल्ड? नहीं, फिर से बताइए। एक तो उसने अपने प्रेजेंट केस को खुद हाँ, प्रेजेंट करने के लिए, दूसरा मैटर ये है कंप्लेनेंट प्रेजेंट हो सकता है, कमिटी में कोई मेंबर है हाँ, और वो प्रोफेशनली कनेक्टेड है जिस मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो देखिए जी, हम तो ये मानते हैं कि ये तो वो जो मेंबर है वो अपने आप को रिक्यूज कर लेंगे उस समय, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, दैट मेंबर इज क्वाइट, दैट मेंबर इज, इट इज एक्सपेक्टेड ही विल रिक्यूज हिमसेल्फ डेफिनेटली। बस सर आप कंटिन्यू कीजिए, बाकी तो रूटीन हम ही आंसर we have little time and I don't know, so we have just 10 minutes more. So this is the code of ethics. Code of ethics में fundamental principles ये हैं। अब ये fundamental principles अपने कुछ मुद्दे की बड़ी बातें कर पाएंगे। इंटेग्रिटी, यानी कि आपके पास में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई जिसे देखते ही आपको लगता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गोल है, या आपके पास में आपने ऑडिट नहीं किया है लेकिन फिर भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है कि ये नेग्लिजेंटली प्रिपेयर्ड है, या आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो इसमें डिस्क्लोजर्स एंड प्रेजेंटेशंस होने चाहिए वो नहीं हुए हैं, यानी कि लास्ट में आप देखिए ओमिट्स और ऑब्स्क्योर्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ऑब्स्क्योर्स यानी इंफॉर्मेशन है लेकिन छुपाई हुई है, उसको एक लेयर के अंदर में दिया हुआ है, आपको ये चीज क्लियर आ रही है। दिस और उस एंगेजमेंट के साथ अगर आप रिलेटेड रहते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं बात की बात है, आप अगर रिलेटेड रहते हैं तो दैट्स अ compromise of integrity, that's very important. ये सारे मैटर्स अब क्लैरिफाई हो रहे हैं, स्टैंडर्ड्स विल गो टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। ऑब्जेक्टिविटी, आप प्रोफेशनल जजमेंट करने की पोजीशन में है कि नहीं? प्रोफेशनल जजमेंट मैंने आपसे बात की है, आप कहीं अनड्यूली इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे। अनड्यूली इन्फ्लुएंस में सिर्फ आप ही नहीं है, आपकी एक इमीडिएट फैमिली है, क्लोज फैमिली है, यहाँ पर एक इमीडिएट क्लोज फैमिली का कंसेप्ट भी लाया गया है। अब जब भी ये पढ़ेंगे, ये कोड ऑफ एथिक्स 2019 पढ़ें तो याद रखिएगा जहां भी वर्ड फैमिली है कहीं ना कहीं इमीडिएट फैमिली, कहीं क्लोज फैमिली लिखा है, दोनों का मतलब अलग अलग है। इमीडिएट फैमिली मींस अ पर्सन, उसकी स्पाउस और इक्विवेलेंट और अ डिपेंडेंट इज इमीडिएट फैमिली, यानी कि स्पाउस और इक्विवेलेंट may not be married, living together is recognized as immediate family or dependent, यानी कि वो डिपेंडेंट रिश्तेदार हो ये भी जरूरी नहीं है, मेरा दोस्त भी मेरा डिपेंडेंट हो सकता है। मेरे दोस्त की ऐसी दोस्ती है कि जिंदगी उसके साथ निभी। There are some politicians who had some such companions who were their close friends and they were in a way dependent on that individual. अगर वैसा केस कहीं यहाँ पे आता, they would fit into the definition of close family. आपका ब्लड रिलेशन कहीं नहीं है, लेकिन एज पर कोड ऑफ एथिक्स डिपेंडेंट होते ही आप इमीडिएट फैमिली में आ जाते हो। एंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स कोई भी हो, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन कोई भी हो, इवन इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट दे विल स्टिल बी क्लोज फैमिली। लेकिन इमीडिएट फैमिली में इट्स अ स्पाउस और इक्विवेलेंट और द डिपेंडेंट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऑब्जेक्टिविटी है, कहीं अनड्यूली इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा। आपकी एक दोस्त, किसी बंदे से बहुत अच्छी दोस्ती थी, आपने 12 साल उसके साथ में इकट्ठे पढ़े लिखे, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, आज वो अपने बिजनेस में है, उसकी एंटिटीज हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, आप प्रोफेशन कर रहे हैं, उसने आपको अपना ऑडिटर बनाया। ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आपका फ्रेमवर्क आपको देखना है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, यू कैन नॉट टेक अप दैट एंगेजमेंट। देयर इज undue influence, direct or indirect, those things have to be understood. Professional competence and due care, current technical knowledge, to stay abreast with current technical knowledge आपके पास है या नहीं,
करंट टेक्निकल नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट है कि नहीं, उस एंगेजमेंट लेवल का पर्टिकुलर का आपके पास में करंट टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो भी आप अगर उस एंगेजमेंट के साथ अटैच रहते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम. To be able to maintain confidentiality and maintaining confidentiality even after the engagement is over, even after the engagement is over, that is an important issue. And professional behavior to comply with the relevant laws and regulations, very important. ये introduce हो रहा है for those who are in employment and for those who are in practice. Compliance with relevant laws and regulations is a very important chapter which must be understood very clearly. मैं किसी की employment में हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में मैं CFO भी नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर फाइनेंस भी नहीं हूँ, मैं चीफ जनरल मैनेजर भी नहीं हूँ, मैं उसके नीचे के लेवल पे हूँ, मैं इंस्ट्रक्शंस पे काम करता हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, मैंने उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम किया, मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इसका मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास एविडेंस भी है, लेकिन उससे ये भी एविडेंट हो रहा है कि जो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉप किए जा रहे थे, वो प्रॉपर नहीं थे, वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, उनमें रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा था. I cannot be held to be not guilty. I must have raised that matter to my higher management. I should go to the management. I should, if required, even अगर बहुत ज़्यादा serious matter है, even go to those charged with governance. अगर उससे भी ज़्यादा serious matter है, I need to consider whether I go and talk to the external auditor. उससे भी ज़्यादा serious matter है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, I need to understand whether I need to go to the regulator and inform. And if I do take that stand in extreme circumstances, तो फिर वो confidentiality clause से भी मैं आजाद हो जाता हूँ. Then मैं confidentiality clause से आजाद होकर के वो काम कर रहा हूँ. लेकिन आज मुझे पता है वो गलत एंट्रीज हो रही हैं, मुझे पता है गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे को डायरेक्शन दिया जा रहा है और मैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं हूँ और मैं 100% चुप रहता हूँ, तो इवन इफ आई एम इन एम्प्लॉयमेंट, इट डजंट वर्क, आई विल स्टिल बी हेल्ड टू बी गिल्टी. And in case somebody is in practice, there is a different framework now altogether. आपको एक एक चीज को एग्जामिन करना है, उसकी नेचर को एग्जामिन करना है. There may be some laws and regulations that relate to finance, that have financial implications. There may be some laws and regulations that do not relate to financial that do not have financial ramifications. उसमें कोई omission या suspected omission हो रहा है, नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस भी है, तो उसे हमने डिटेल में देखना है, पूरा लॉ स्टडी करना है, ऑब्लिगेशन स्टडी करना है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेगुलेटर स्टडी करना है. उसके बाद में हमको किस स्टेज पर रिपोर्ट करने की जरूरत है वो स्टडी करना है. मैनेजमेंट के पास लेके जाना ही काफी रहेगा क्या? अगर हम सीनियर अकाउंटेंट हैं, यानी अ पर्सन हु इज अदरवाइज हैविंग सफिशिएंट इन्फ्लुएंस इन एन एंटिटी टू वर्क विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट दैट पर्टिकुलर लेवल, दैट पर्सन विल बी अ सीनियर accountant. That senior accountant, whether he is truly dealing with it, raising it to those charged with governance, maybe even going to the auditor, maybe even going to the regulator, all that has to be taken into consideration. So compliance with relevant laws and regulations, इसके ऊपर आप चाहें तो हम एक अलग सेशन कर सकते हैं. This is of so much importance. It's going to totally redefine, and it is not limited essentially to financial matters only. There may be environmental issues, there may be safety issues, there may be safety hazards, which if you are aware of non-compliance or suspected non-compliance, omission or suspected omission, even if you have reasons for that to happen, you have to go into those particular details and you have to go to that particular extent. And फिर आपको कोई भी काम करते वक्त, अपने प्रमोट करते वक्त, no exaggerated claim, no disparaging references and no measures to advertise. आपको थ्रेट्स को देखना है. 5 तरह की थ्रेट्स होती हैं, उस थ्रेट्स आपके पास रहेंगी, लेकिन उस थ्रेट्स को आप नेगोशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड आप उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे ला पा रहे हैं नहीं, वो आपको देखना है. फॉर एग्जांपल, इसमें कई एक नए एग्जांपल्स दिए हैं. आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट, यू नो, बिकॉज ये जो प्रेजेंटेशन है कुड टेक अनदर 2 hours, यू नो. वी हैवंट इवन स्टार्टेड टचिंग ऑन कोड ऑफ एथिक्स बिकॉज हमारे पास जो दूसरे इश्यूज आपने रेज किए थे. फॉर एग्जांपल, ऑडिट फीस बाकी है, 2 साल की ऑडिट फीस बाकी है. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है सर, क्योंकि ये तो एक तरह से आपने कंपनी को लोन में पैसा दे दिया है. आपका पैसा था, कंपनी ने आपको दिया नहीं है, ये एक तरह से आपका लोन में दिया हुआ है. अगर ये लार्ज अमाउंट है, आपकी इनकम से कंपेयर करते हुए और ज्यादा लार्ज अमाउंट है, तो इट्स इवन मोर क्लियर ऑफ अ थ्रेट ऑफ सेल्फ रिव्यू. इसको आप क्या कर रहे हो?
कोई भी थ्रेट्स आते हैं डजंट मीन कि आप काम नहीं कर सकते हो. इट डेफिनेटली मीन्स कि आपको इवेल्युएट करना है कि उस थ्रेट को हम एक्सेप्टेबल लेवल पे ला पा रहे हैं कि नहीं. अगर उसे हम एक्सेप्टेबल लेवल पे ला पाते हैं, then we can continue with the engagement. Otherwise, you have to maybe look towards coming out of that engagement, seize that particular engagement if the law allows you to do it. If it doesn't allow you to do it, then also they have prescribed in the code of ethics. You may use the work, you may have your work reviewed by an independent reviewer who is not a part of your firm. Not a part of your firm. उसे आप engage करोगे, वो review करेगा, तब वो confident होगा. तब ये threat, at least for that particular year where you cannot come out of an engagement under a particular law, somehow you will come out of it. लेकिन at the first and the earliest opportunity, you must seize your relationship with that particular entity. Next, जो दिमाग में आ रहा है, will not go sequentially. आज के दिन हम बात करते थे, communication between the incoming and the outgoing auditor. अब communication एकदम clear कर दिया है. आपको communicate करना है और communicate करते हुए आपको उनसे पूछना है कि do they have any information regarding any facts of other information of which जिसको के existing and predecessor auditor को पता है, जो कि proposed auditor के लिए important हो to decide whether to accept the engagement. आपको specifically ये detail पूछनी है. अगर आपको auditor नहीं बताते हैं, तो आज के दिन तो हम कहते थे जी हमने उससे पूछा, उसने नहीं बताया, we deemed it's all right. अब लेकिन कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि नहीं, यू यूज सम अदर मींस टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन. आप क्या इंफॉर्मेशन खोज सकते हो, नहीं खोज सकते हो, बहुत डिटेल में नहीं खोज सके, लेकिन फिर भी हमने ये मोरलेस पता कर लिया, उसे डॉक्यूमेंट आप अपने पास करके रख लोगे, दैट इज फाइन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू, आपने एग्जिस्टिंग एंड आउटगोइंग ऑडिटर से चिट्ठी डाली थी, उसे पता किया था, लेकिन ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू यू एंड ही इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड अनएम्बिगुअसली एंड ऑनेस्टली. Unambiguously and honestly is required to respond. उसको complete details देनी पड़ेगी, जो details उसको पता है, which he believes is important for you, based on which you must take a decision whether or not to accept that particular engagement. And if he doesn't do it, he is also professionally guilty. यानी आज तक तो नहीं लेने के, नहीं communicate करने के matters professional misconduct के लिए आए हैं. अब outgoing auditor नहीं communicate करने के लिए भी मैटर्स आएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के. उससे पूछा था, जिससे पूछा गया था उसने नहीं बताया, लेकिन जिसने पूछा उसने अपना अदर स्टेप्स ले लिए जिससे खुद को सेटिस्फाई कर लिया, तो वो तो बरी हो गया. लेकिन जिससे पूछा गया था उसने नहीं बताया, दैट ऑल्सो अनएम्बिगुअसली एंड ऑनेस्टली ही रिफ्रेन्ड, और he gave a very circuitous reply. He did not expose the full nature of the things in brief which he believes any incoming auditor should know. Then he has not done it unambiguously, he has not done it honestly. That itself will be professional misconduct. आपकी सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मीना गोयल जी का. The Code of Ethics 2019 doesn't talk of obtaining NOC by mail. No, so no. Even the current code doesn't require. ये NOC का concept गलत है थी. ये हम loosely referred term करते हैं. आपकी communication जरूरी है. वो आपको कम्युनिकेशन जरूरी है ना. हाँ. वो आपको कह भी देता है ना incoming auditor कि आपको इसका नहीं accept करना चाहिए. You can still come to a conclusion that based on the facts you can go ahead and accept. But you must have applied your mind. You must have seen those documents. You must document those that material. You must have it. No objection certificate लेना आज के कोड में भी जरूरी नहीं है और 2019 वाले कोड में भी जरूरी नहीं. मैं खुद यही कहता था कि कम्युनिकेशन करें. एनओसी इज अ डिफरेंट मैटर. सर एक राहुल गुप्ता जी का क्वेश्चन है. एनओसी की रिक्वायरमेंट है नहीं सर. नहीं सर, रिक्वायरमेंट ही नहीं. मैं कह रहा हूं कि क्लाइंट ऑडिटर से एनओसी लेगा अगर उसको वो रिजाइन कर रहा है तो. आई थिंक सर वो क्लाइंट भी एनओसी कुछ नहीं लेगा. क्लाइंट ने जो काम करना है वो दूसरा मैटर है. वो पहले सेक्शन 224 225 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 में था, अभी दूसरे सेक्शंस में है. क्लाइंट उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, क्या करेगा, कम्युनिकेशन देगा. क्लाइंट उसको बीच में रिमूव करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की 140 में परमिशन भी लेगा. उसके बाद में जो सारे इसके फॉर्म्स फाइल करने हैं वो करेगा. जनरल मीटिंग में होना है वो सारा कुछ होगा. कैजुअल वैकेंसी है तो बोर्ड में होगा. क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट का काम है. एनओसी कंसेप्ट डजंट एग्जिस्ट. सर एक राहुल गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द ड्यू डिलिजेंस, उनको किसी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करना था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का. उसके अंदर उन्होंने देखा कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने यूडी नंबर नहीं लिया है. तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द ड्यू डिलिजेंस ऑडिटर कि आर वी ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट कि भाई उन्होंने यूडी नंबर नहीं लिया है.
यूडेन स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने यूडेन नंबर नहीं लिया, मतलब यूडेन नंबर लिए बिना वो साइन कैसे करेंगे, अपलोड किए बिना? सर वो तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कर दी, गलती कर दी, और अब उसका ड्यू डिलिजेंस किसी दूसरी फर्म के पास गया है। हाँ सर, उसमें ड्यू डिलिजेंस के अंदर जो हाँ पॉइंट आउट करेंगे, बिकॉज वो ऑडिट रिपोर्ट ही चैलेंज होने वाली है ना सर, उसकी जेन्युइननेस चैलेंज होने वाली है। बिल्कुल पॉइंट आउट। सर एक टाइम लिमिट का मुद्दा आ रहा है कि कंप्लेंट्स करी इंस्टीट्यूट के अंदर, वो 1 साल 2 साल 3 साल आ गए, किसी मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से राहुल गुप्ता जी उन्होंने लिखा है कि समटाइम्स एक्सेस प्रूफ इन द कंप्लेंट available with our institute to decide on matters. I complained in 2017 with all the proof, 6 RTI, 4 follow-up, but no conclusion. Why our institute keep this case alive? Say yes or no to the claimant on their application at least. ये तो सर इंस्टीट्यूट जवाब दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। देयर मे बी वेरियस रीजंस, and it will be inappropriate to make any comment under that circumstances. इसका रिवर्स मैटर है कि कोई मैटर अगर 5, 10, 15 साल में भी डिसाइड नहीं होता है, जिसमें कि एक रिस्पोंडेंट की गलती नहीं होती है, वी हैव गॉट सर्टेन केस लॉस, जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत दिन लग गए, बहुत खिंच गया, इसकी बहुत मेंटल टेंशन हो गई, इसको जो सजा मिलनी थी वो मेंटल टेंशन इसकी सजा है, अब इस मैटर को बंद करो। इसमें कई केस लॉज में रिस्पोंडेंट के फेवर के भी ऑडिटर्स डिसीजंस हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन कंप्लेनेंट साइड से डिले हो रहा है, I think the matter can be taken up with the institute. Institute will have some rightful reason for that delay. Without knowing that matter, in specific matter को ऐसे भी एक वेबिनार पे नहीं डिस्कस करेंगे। Okay, सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मैटर है सर, ऐसा कोड ऑफ एथिक्स 2019 से एकदम हट जा रहे हैं, आप पे प्रोसीजरल में जा रहे हैं वापस। एनीवे, आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। डायरेक्टर डिसिप्लिन ने कोई डिसीजन दिया, उसके अगेंस्ट एपलेट अथॉरिटी में गए, तो एपलेट अथॉरिटी ने वापस रिमांड बैक करा, तो हाउ कैन वी से कि भाई डायरेक्टर डिसिप्लिन का डिसीजन सही था? तो ये तो मेरा भी मानना है कि डिसिप्लिन डायरेक्टर डिसिप्लिन का कोई डिसीजन होता ही नहीं, डिसीजन तो शायद कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। डायरेक्टर डिसिप्लिन का पीएफओ होता है पहले स्टेज पे, उसके बाद में तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी की फाइंडिंग्स होती हैं, एंड उसके बेसिस में एक पनिशमेंट होता है। अब अगर वो एपेलेट अथॉरिटी में जाके रिमांड हुआ है, तो वो मैटर टू द एक्सटेंट वो रिमांड बैक हुआ है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन से दोबारा देखेगी उसको, दोबारा टू दैट एक्सटेंट इट इज रीओपन्ड। Either the full matter is reopened, या कई बार एपेलेट अथॉरिटी एक लिमिटेड एक्सटेंट के लिए, एक लिमिटेड स्कोप में उसको बोलता है जी इस एंगल से देखो, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस दैट कम फ्रॉम द एपेलेट अथॉरिटी। सर ये 15% वाला कोई मैटर है कोड ऑफ एथिक्स में कि हमारे किसी क्लाइंट ने, मैं नेक्स्ट वीक करना चाहता हूं, मुझे 2-3 उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। हां मैं आ रहा हूं उसमें, चलिए उसी को लेते हैं नेक्स्ट। वो ये है, एक तो ये है, पहले आप सेटल कर ले कि आपने फीस कोट की है जो फीस पहले वाले ऑडिटर से बहुत कम है। फीस कम कोट करने के लिए कहीं पर आपके दिन, आज के दिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कोटिंग टू लो अ फी मे बी यू नो दैट मे बी अ सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, क्योंकि आपको जितना काम करना है, जिस तरह के लोग लगाने हैं, जिस तरह की एक्सपर्टीज करनी है, उसके हिसाब से जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको उसको स्टडी करना है। अब ये है फीस वाला मैटर। ये साहब हम काम करते हैं, फर्म है 15 साल 20 साल से फर्म चल रही है, नई फर्म भी हो सकती है, उसमें 3, 4, 5, 6 पार्टनर हैं, हमारे पास 2-3 समझिए बड़े बिग बिजनेस हाउस हैं, मिडिल लेवल के बिजनेस हाउस हैं, उनकी 20-20, 30-30, 40 एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके अलग अलग ऑडिट्स हैं, उनका कुछ टैक्सेशन का भी पर्सनल लेवल का, किसी का भी कोई काम आता है अलग से आता है, या ऑडिट्स ही हैं, समझिए प्योर ऑडिट्स ही समझते हैं, उनके रिलेटेड एंटिटीज के, उनके खुद के सारे एंटिटीज के ऑडिट्स हैं। इट इज एनफ टू कीप द फर्म एंगेज्ड, इट इज एनफ टू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी। मिडिल साइज की फर्म है, वो अपना काम करती है, पूरा काम करती है, अपना आराम से चलता है, बढ़िया चलता है, उनका भी बिजनेस अच्छा चल रहा है एंटिटीज का, इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। अब अगर हम कहते हैं कि अगर 15% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू लास्ट 2 साल के लिए कंटिन्यूअसली इज कमिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर एंटिटी और दैट एंटिटी एंड ऑल इट्स रिलेटेड एंटिटीज, then there is a threat. And it needs to be disclosed to those charged with governance. And आपको safety measures के लेने पड़ेंगे. And safety measures can go to the extent of using an outsider as a quality reviewer. And this is one place where a lot of our firms may begin to get hit. आप 1 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 1 करोड़ में से 75 लाख रुपए की रेवेन्यू तो 3 बिजनेस हाउसेस से ही आ जाती है, बाकी 25 लाख रुपए की रेवेन्यू जो है वो और कई क्लाइंट्स हैं, वो बीच बीच में आते हैं, ये रेगुलर भी क्लाइंट्स हैं, उनसे आती है। तो ये 3 बड़े हाउसेस हैं, एक से 20 लाख रुपए की, एक से 30 लाख रुपए की,
1 से 25 लाख रुपए की ये रेवेन्यू आ जाती है। तो तीनों केस में आप 15% से ऊपर हो रहा है, तो तीनों में ही वो जो है मैटर अराइज कर रहा है। अब ये कोड ऑफ एथिक्स कहता है जी आपकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह सकती है, आपका इंडिपेंडेंस नहीं रह सकता है उस केस में। इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा लिफ्ट कर दिए गए हैं। इंडिपेंडेंस में तो आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, नॉट ओनली विद द एंटिटी, इवन विद द थर्ड एंटिटी जिसके साथ में आपकी ऑडिटी एंटिटी का कोई ट्रांजैक्शन हो, आपका डायरेक्ट नहीं, आपकी क्लोज फैमिली का भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो विद अ थर्ड एंटिटी जिसके साथ में ऑडिटी एंटिटी का भी ट्रांजैक्शन हो, रिवर्स कंट्रोल हो, उस एंटिटी का ऑडिटी एंटिटी पे कंट्रोल हो, या ऑडिटी एंटिटी का उस पे कंट्रोल हो, या आपके किसी फैमिली मेंबर्स का थर्ड एंटिटी पे कंट्रोल हो जिसके साथ में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस होते हो ऑडिटी एंटिटी के, एवरीवेयर इंडिपेंडेंस इज इम्पेयर्ड। ये इंडिपेंडेंस वाले जो क्लॉजेस हैं इसमें, उसमें बहुत एग्जांपल्स देके डील किया हुआ है, वो सारे के सारे इम्पेयर्ड होते हैं। यहां पर भी आपकी ऑब्जेक्टिविटी, आपकी इंडिपेंडेंस इम्पेयर हो रही है, सो आप उसके लिए सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, एंड सेफ्टी मेजर्स भी उसने प्रिस्क्राइब किए हैं। एंड सेफ्टी मेजर्स मैं आपको बता रहा हूं, सेफ्टी मेजर्स विल बॉयल डाउन टू टॉकिंग विद दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस। और ये नहीं है कि एक बार आपने कर लिया, आपको हर साल ये रिव्यू करते हुए चलना है। ये पोजीशन तो हर साल आ सकती है, इसका आप इलाज क्या करोगे? ये पोजीशन तो हर साल आ सकती है। सिंपलेस्ट इलाज तो ये रहेगा कि हर साल एक क्वालिटी रिव्यू होगा, आपके सारे उन एंगेजमेंट्स का क्वालिटी रिव्यू होगा। अब वो क्वालिटी रिव्यू करोगे तो क्वालिटी रिव्यू की कॉस्ट आती है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन क्या है बताइए? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू which is going to come before the profession, and मैं आपको फिर कह रहा हूं, I am just beginning to touch the tip of the iceberg in Code of Ethics 2019. This is just the tip of the iceberg of Code of Ethics 2019. हाँ जी, क्वेश्चन किसी का था, बता रहे थे, बताइए विजय जी। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, so let us take them one by one. विजय जी, you may please proceed. 5:15 बज चुके हैं, आप कंटिन्यू करना चाहें तो आपकी इच्छा है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। हाँ सर, राजीव खन्ना जी का मैटर है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्शन 410 क्लोज 4, section 410 clause 4 for the intimation of management and the applicability of quality assurance review for the audit of client. See clarification whether it is the regular quality review to be undertaken by the quality assurance board or any CA not being associated with the firm. एक सेकंड, 410 क्या बोले वो? 410 clause 4 के अंदर कोई intimation to the management and applicability of the quality assurance review for the audit of client. See clarification whether it is 10.4 खोल रहा हूं ना सर। Okay. हाँ जी, 410.4 is a requirement section, यानी कि कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। 410 says, ये जो मैंने आपको लिखा था वही है, उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो तो मैंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया हुआ है। Where for two, हाँ जी, आप पूछिए क्या क्वेश्चन क्या है, बताइए। Whether it is a regular quality review to be undertaken by the quality assurance board or any CA not being associated with the CA. QRB का आप रिव्यू की बात कर रहे हैं, वो तो अलग चीज होती है सर। QRB तो आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया, QRB होगा नहीं होगा, QRB तो ऐसे ही कुछ एक फर्म का एंटिटीज का अकाउंट उठा लेती है उनका QRB का, या फॉर व्हाटएवर रीजंस दैट द QRB में बिलीव अंडर द QRB रूल्स अलग हैं, उसके अंदर में वो QRB का रिव्यू होता है। QRB के रिव्यू से इसका कोई लेन देन नहीं है। ये तो आप तो थोड़ा ये तो आपके पास स्टैंडर्ड है EQCR का, एक कंसेप्ट है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एज पर SQC1 is a person who may be within the firm or may be from outside the firm or it may be an entity. अगर वो टीम होती है, the team has to be led by a member by an individual who's a member of the Institute of Chartered Accountants of India, and उसकी जो ड्यूटीज हैं एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस हैं उसके लिए एक पूरा अलग स्टैंडर्ड है, एंड वो स्टैंडर्ड का पूरा कंप्लायंस करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो होता है इस पर्टिकुलर मैटर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं आपको चेक करके भी साथ साथ बता देता हूँ कि ये जो EQCR है, ये जो क्वालिटी कंट्रोल होगा, ये क्वालिटी कंट्रोल विल बी बाय एन आउटसाइड पर्सन, नॉट फ्रॉम विद इन द फर्म। सर दूसरा पॉइंट है 15% जो फीस है फॉर 2 consecutive years, दिस इज एप्लीकेबल टू द ऑल सर्विसेज और टू द ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विस ओनली। ये देखिए, इसका जो सॉल्यूशन था, रुक जाइए, इसका जो सॉल्यूशन था पिछले वाले का, वो पिछले वाले में आपका
410.6 में वो आपको रिवर्ट करता है 410.4 बी में एंड 410.5 में, एंड 410.4 बी जो है वो कहता है discuss whether either of the following actions may be a safeguard to address the threat created by the total fees for 2 consecutive years received by the firm from the client, and if so, apply it. Number 1, prior to the audit opinion being issued on the 3rd year's financial statements. यानी कि 2 years के audit statement, इसमें 2 option है, वो मैंने यहाँ पे डिटेल नहीं की, डिटेल यहाँ पर है। 3rd year का मतलब 2 साल का तो हो गया है, अब 3rd year वाला जो audit होगा, a professional accountant who is not a member of the firm expressing the opinion on the financial statements performs an engagement quality control review of that engagement, or a professional body performs a review of that engagement that is equivalent to an engagement quality control review. यानी कि वो इसमें वो प्रोफेशनल बॉडी की, इसलिए वो यहाँ पर उन्होंने शायद वो कंफ्यूज हो गए। तो आपको देयर में भी ए पॉसिबिलिटी कि आप देखते हो कि अच्छा 2 साल का तो हो गया, अब अगले 3रे साल का जो मैं काम करने वाला हूँ उसमें मैं EQCR को एम्प्लॉय करता हूँ या लेके आता हूँ, who has to be a person outside my firm, उससे करवाता हूँ। एंड रोमन 2 है, after the audit opinion of the 3rd year's financial statements has been issued and before the audit opinion being issued on the 4th year's financial statement, a professional accountant who is not a member of the firm expressing the opinion on the financial statement or by a professional body performs a review of the second year's audit that is equivalent to an engagement quality control review. यानी कि आपका ये जो चल रहा है तो आपके 3rd year में भी इम्पैक्ट आ सकता है, 4th year में भी इम्पैक्ट आ सकता है। इसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें अल्टीमेटली ये जजमेंट जो है आपको लेनी है, ये जजमेंट जो है ऑडिटर को लेनी पड़ेगी, बहुत ही फेयर जजमेंट होनी पड़ेगी। एंड देयर मे बी अ बॉडी जिससे ये रिव्यू हो सकता है, बट दिस बॉडी विल डेफिनेटली नॉट बी द QRB, बिकॉज यू कैन नेवर गारंटी कि ये QRB इस एंटिटी को पिकअप करेगा। सो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम डाउन ऑन द ऑडिटर कि to use the services of any other professional accountant not from the same firm to do what is called at par with the engagement quality control review. And engagement quality control review के अपने standards बहुत strict हैं, and I mean strict in the sense they've got full-fledged standards, and वो standards को आपको refer करके ही काम करना पड़ेगा। समझ गया सर। ये this code of ethics comes into effect from 1st July 2020। तो जो हमारी 2 साल की फीस है वो 19-20 और 20-21 भी कवर अप हो जाएंगी या सिर्फ 20-21 और 21-22 की कवर अप होंगी? Where for 2 consecutive years the gross total income from the audit client is before than 50 shall disclose the, तो ये तो देखिए आपका जो ये तो जुलाई में हो रहा है, आप जुलाई के बाद में जो भी एंटिटी को साइन करेंगे उसके पहले 2 साल की जो है आप देखोगे। ओके, उससे पहले की 2 साल की कवर अप कर लेंगे, ठीक है सर। कुछ क्लाइंट से 3 आता है, विनोद रावत जी की क्वेरी है। ये आपने जो बोला ना, इसमें आई नीड टू, इसमें वेट दिस वन नीड्स टू अप्लाई कि आप कर तो आज रहे हो, इस कोड ऑफ एथिक्स को अप्लाई आज कर रहे हो, ये आप पहले से रहा है, तो क्या ये अगले 2 साल नहीं सर? मेरा इसका फर्स्ट रिस्पॉन्स यही बन रहा है, इसमें तो कोई आपको डिबार नहीं कर रहा है, ये तो स्टैंडर्ड्स लिफ्ट करने की बात कर रहा है। ये तो आपको ये नहीं कह रहा है कि आप ऑडिट कर नहीं सकते हो, ये तो कह रहा है कि आपकी अगर 15% से ज्यादा की हो रही है तो आपको कई एक सेफगार्ड्स लेने हैं। वो सेफगार्ड्स तो सर इमीडिएटली इफेक्ट होंगे सर। यस, सेफगार्ड्स तो आज लेने हैं आपको, सेफगार्ड्स तो पहले नहीं लेने थे, सेफगार्ड्स तो आज लेने हैं, तो सेफगार्ड्स आज लेने पड़ेंगे सर। ओके सर, एक विनोद रावल जी की क्वेरी है, व्हाट इज द रेमेडी विद द CA ऑन 38 बाय द क्लाइंट to complain with ICI for non-adherence to the illegal demands such as providing audited accounts for the period for which he was not even appointed as statutory auditor by the board, but services on account of internal audit, tax advisory, compliance, something like. The CA was paid a lump sum amount out of which the taxes were paid on behalf of the assessee as he was not having online facility. The remaining amount was retained by CA for the services provided in the past, but the client now asked for the audited accounts for the period for non-appointment, citing logic of making payment of statutory audit also. Company's account was not given to director. सर इस केस में तो ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट के पास अकाउंट्स ही नहीं है, अकाउंट्स ही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट्स को नहीं दे रहा है। सर मुझे ये क्वेश्चन तो पूरा समझ नहीं आया, बट नंबर 1 the financial statement, the accounts and the books of accounts are the property of the entity, they are not our property.
वो प्रॉपर्टी तो हम अगर कभी भी रिटेन करते हैं तो दैट इज रिटेनिंग समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी, वो तो डिफेंड हो ही नहीं सकता है कभी भी। और ये जितनी आपने सर्विसेज यहाँ लिखी उतनी सर्विसेज तो एक साथ में रेंडर ही नहीं की जा सकती हैं। सेक्शन 144 भी देख लीजिए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और जितनी सर्विसेज आपने लिखी, मैं उसके बाद में ये क्वेश्चन पूरा समझ नहीं पाया हूँ। आप अगर इसे समझा के मुझे पूछ सकें तो मैं इसका, इसमें मैटर यही है कि क्लाइंट की तरफ से लमसम पेमेंट जाती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उसमें से क्लाइंट का टैक्स भी पे करता था। लमसम पेमेंट का कांसेप्ट नहीं है, हर एंगेजमेंट है ये सर। ये एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में इट्स वेरी क्लियर कि ईच इंडिविजुअल एंगेजमेंट है, हर एंगेजमेंट का एंगेजमेंट लेटर होगा, हर एंगेजमेंट की फीस होगी, हर एंगेजमेंट को रिव्यू किया जाना है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद लमसम कि तुम ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, इतने रुपए दे दो। पहली बात तो मैं जो आपको कह रहा हूँ उतने काम तो जितने इन्होंने लिखे हैं, इफ आई हैव हर्ड इट करेक्ट, बिकॉज़ आपने भी जल्दी पढ़ा, इफ आई हैव हर्ड नहीं सर, जो आपने सुने हैं मैंने 4-5 कम ही बोले हैं। हाँ, तो फिर उतने काम तो एक साथ कर ही नहीं सकता था, पहले तो वहीं पे प्रॉब्लम है। दूसरी बात है हर एंगेजमेंट का अलग अलग अपना है, अलग अपनी फीस है। आई मीन इट कैन नॉट वर्क लाइक दैट कि एवरीथिंग एक लमसम कर दिया। वो लमसम में आप अग्री भी कर लो, लेकिन आप अदरवाइज उसको अग्री करके आप उसको डिमार्केट कराओ हर सर्विस के साथ में, हर सर्विस कैन, वेदर दैट सर्विस कैन बी रेंडर्ड और नॉट, दैट आल्सो यू हैव टू सी। सर एक विपिन गेरे जी का मैटर है सर, लाइक इन सीआरपीसी वेदर द ओनर्स प्रूफ लाइज विद द कंप्लेंट और द रिस्पोंडेंट नीड टू चैलेंज एंड प्रेजेंट हिज केस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेम। अगर जो मेरे को समझ में आया, डायरेक्टर डिसिप्लिन ने तो एलिगेशन लगाई। मुझे किसका क्वेश्चन है, ये नाम बताइए। विपिन गेरा जी का। एनीवे इसमें ऐसा है, there is a matter which जिसमें judicial pronouncement है, CH पाडलिया वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप चेक कर लीजिएगा। वो ऑर्डर इज वेरी क्लियर which says that the onus of providing all proof and evidence in support of the allegations made against any professional accountant lies with the person or the authority making those allegations। उसमें ये भी सेंटेंस है, अगला सेंटेंस, ये जो मैंने आपको बोला है ये मोर और लेस इसमें कोई एक आध वर्ड इधर उधर होगा, लेकिन यही पूरा सेंटेंस है। और उसका अगला सेंटेंस है, नो रिवर्स बर्डन कैन लाई ऑन द रिस्पोंडेंट or on the professional complainant or the professional accountant to prove that he is not guilty। तो इसलिए रिवर्स बर्डन नहीं लाई कर सकता है। यानी कि मैंने कह दिया कि आपने ये काम किया है, गलत काम किया है, अब आप प्रूफ लाओ ये बताने के लिए कि ये गलत काम आपने नहीं किया है। नहीं साहब, ये नहीं है। ये सिचुएशन कई बार आती है, अराइज होती है, एंड ये सिचुएशन को उस तरह से ही हैंडल करना चाहिए। rather than giving in the evidence, you give in the evidence, they will look more into that evidence। You say you bring the evidence, I'm not required to give in my evidence। You have to bring in proof or evidence in support of the allegations made। You have to bring complete documents, A, complete documents, B, complete support anything in support of the allegations made against me। proof evidence उसका लेके आओ। आप नहीं लाते हो और आप बोलते हो जी मैंने तो खाली एलिगेशन लगा दिया, खुद को आप प्रूव करते जाओ कि मैं नॉट गिल्टी हूं। द लॉ डजंट अलाउ दैट, द लॉ विल प्रोटेक्ट यू। ये जो मैंने आपको केस बताया, ये केस तो डायरेक्टली अप्लाइज टू एन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अदरवाइज आपको कंट्री के लॉ में ऐसे और बहुत केसेस भी और मिल जाएंगे, बट दिस इज वन व्हिच इज एप्लीकेबल डायरेक्टली टू द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। सर एक लास्ट क्वेश्चन है 525। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। कैन माय फर्म may take up audit of the firm in which my sister's husband is partner? My sister is independent in all respect। No, sisters may be independent in all respect, your sister is your sister, you cannot। Definitely on sister's husband की फर्म होगी तो मेरे ख्याल से not allowed। नहीं सर। सो देखिए, मैं अभी आपको यहाँ पे ये फर्म वाला ले आया, इसमें मैं शॉर्ट में आपको खाली एक चीज और बता दूं कि इसमें इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स हैव गॉन टू अ वेरी डिफरेंट लेवल, द वर्किंग स्टैंडर्ड्स हैव गॉन टू अ वेरी डिफरेंट लेवल, the other laws and regulations have gone to a different level। एक और concept has been introduced which is the concept of administrative services। administrative services आप दे सकते हैं जो कि कई एक routine type की services हैं, certain filing को check करना कि filing हो गया है नहीं हो गया है, जहां पर आपको कोई भी decision नहीं लेना है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज नहीं करनी है, लेकिन वो अगर आपके ऑडिट के साथ में मर्ज हो जाती हैं तो वो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलग से डील किया है इन 600 क्लॉजेस में।
100, 200, 300 फोन, जैसे 400 वाला था, 600 वाले क्लॉजेस में उसको डील किया है, उसमें परमिट किया है, और उसी में साथ में आगे कई और सर्विसेज को डील किया है। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, आईटी सिस्टम सर्विसेज, रिक्रूटमेंट सर्विसेज, के ऐसे सर्विसेज भी ऑडिटर ले सकता है कि नहीं। एंड उन सब में वन गाइडिंग प्रिंसिपल इज कि कहीं भी अगर रोल आ जाए डिसीजन मेकिंग, तो आप नहीं ले सकते हैं। कहीं भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि जहां आप कोई भी काम करके देंगे that has a direct impact on the financial statements, आप उसको नहीं ले सकते हैं। जहां पर कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए which has a direct role in the preparation of the financial statements or the preparation of the data which is significant to the financial statements, आप उन सर्विसेज को भी नहीं ले सकते हैं। आप ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी इन एनी कोर्ट नहीं कर सकते हैं, बिलो द कोर्ट आप कर सकते हैं। सो दोज आर ऑल इन 600। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाला वो चैप्टर, एंड ये जो अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज है उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हैं तो उसमें देयर आर कैविएट्स के थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो सारे डील करने पड़ेंगे। इसमें इंडिपेंडेंस में और बहुत से इश्यूज हैं कि आपके ऑडिट पार्टनर हैं या आपके ऑडिट के सीनियर स्टाफ हैं, वो उन्होंने जाके किसी क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया, तो आप उस क्लाइंट को ऑडिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने में एंड प्रेजेंट करने में वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कितने साल तक तो तब नहीं आप नहीं कर सकते हो, उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो ही नहीं कर सकते हो, और कब से आप कर सकते हो कि ठीक है इतना टाइम निकल गया अब इसके बाद से हम कर सकते हैं। Now, those all issues को भी उन्होंने किया है। रोटेशन वाले इश्यूज में भी आप कितने साल कहाँ पे रहे हो, आप एंगेजमेंट पार्टनर रहे हो, आप EQCR में रहे हो, आप की ऑडिट पर्सनल रहे हो, उसमें से कितने साल आपने क्या क्या रोल प्ले किया है। 7 साल के बाद में आपका रोटेशन होना है। अगर आपने हर साल आप एंगेजमेंट पार्टनर ही रहे हो तो आपका कूलिंग ऑफ पीरियड 5 साल रखा है, कई केसेस में कूलिंग ऑफ पीरियड 4 साल रखा है, कई केसेस में कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल रखा है। कई बार आपने 3 साल तक काम किया, उसके बाद में गैप आ जाता है, फिर आपके पास काम आ जाता है, तो ये 7 साल का पीरियड कैसे कंप्यूट होगा वो भी उसमें डील किया है। Now those things have also to be reviewed. What I am trying to tell you is basically Code of Ethics 2019 के important issues को मैंने आज हाईलाइट जरूर कर दिया है, हो सकता है कोई एक आध important issues छूट भी गए हों, एंड इसको सबको खुद पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ें एंड डिटेल में पढ़ें एंड समय लेकर पढ़ें, लेकिन जुलाई 2020 से ये लागू हो जाएगा। एंड मैं आपको खाली एक ही चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फ्रॉम विच आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं एंड जो हमारा कोड है उसके अनुसार हम जो भी काम करते हैं वो काम हम अक्सर हमारा किया हुआ ही होता है। प्रॉब्लम आती है एविडेंस की। डॉक्यूमेंट 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 इज गोइंग टू बी द की। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू एंड। So Vijay ji, Saurabh ji and Pankaj ji, I turn it back to you. Thank you for this wonderful opportunity. Many lot of thanks, sir. The way you have highlighted the matters, the focus on the evidence and the documentation, which we have highlighted many times. I think our members will be very much enlightened by this session of yours. And there are still some query left. So we will be posting this on our YouTube channel. So you can post your queries now. And sir, with your permission, we might be coming you back with those questions so that we can revert back to our members. Sure. So at the end, we thanks a lot to you at such a short period of time you attended, you accepted our invitation, and you also took 30 minutes extra for this session. So we are again thankful to you. So I would request Vijay Gupta ji to please present the vote of thanks. Thank you Saurabh ji and AP Singh ji. आज के सेशन के अंदर काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा। अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस लाइव आंसर भी किए गए हैं। और मेन पर्पज रेगुलेटरी बॉडी हमारी है, तो बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने बड़े मुश्किल से एग्जाम पास किया है, तो ये कोड भी कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। इसके अंदर सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, हमने काम तो करा ही हुआ है, हमें इसकी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही बनानी है। तो डॉक्यूमेंटेशन बनाने के अंदर अगर हमारी स्मॉल फर्म है तो उसके अंदर हमें आधा घंटा 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगना है, और वो भी आई थिंक फर्स्ट ईयर में हमें ऐसा लगना है। बाद में जब कोई रूटीन की प्रैक्टिस हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन बनाने की, तो बाद में वो हमें टाइम भी एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ता। और बड़ी फर्म या मीडियम फर्म है तो उसके लिए हमारे पास एडिशनल स्टाफ होता है, आर्टिकल्स हैं या पेड स्टाफ है या पार्टनर्स हैं। तो जिस तरह की प्रैक्टिस हम हैबिट में लेके आएंगे तो उस वजह से हमारे पास टाइम का बर्डन भी नहीं लगता। अब स्टार्टिंग में अगर हम रूटीन लाइफ में देखें, हमें मॉर्निंग वॉक बड़ा खलता है। लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हम एक्सरसाइज का टाइम
यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली लाइफ में कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे जीने के लिए खाना जरूरी है, ऐसे ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इतना टाइम नहीं लगना जितना ऑडिट में लगना है। एक बार अपॉइंटमेंट लेटर का आपको फॉर्मेट लग गया, कंफर्मेशन का लग गया, कंसेंट लेने का लग गया, या कम्युनिकेशन फ्रॉम द आउटगोइंग ऑडिटर, तो ये एक बारी की चीजें ओवरबर्डन लगती हैं। बाद में पता लगता है कि हर चीज के साथ आदमी रह सकता है, हर चीज के बिना आदमी रह सकता है। तो इस चीज को ओवरबर्डन ना लें, इसको एक तरह से वेलकम मूव लें, ताकि इन फ्यूचर कल को कोई कंप्लेंट्स होती है किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी ऑडिटर के अगेंस्ट में, तो एटलीस्ट वो अपने आप को पूरी डॉक्यूमेंटेशन से सेफगार्ड कर पाए। तो कोड पढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे लंबी काफी मोटी मोटी बुक्स पढ़ के हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। बाकी आप लोगों की सारी क्वेरीज वेलकम हैं, आप क्वेरीज मुझे भी मेल कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको लिंक दिया जाएगा, और इन फ्यूचर्स भी इससे रिलेटेड रेगुलर सेशन हम रेगुलर करवाएंगे। एंड एपी सिंह जी हमारे इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इन फ्यूचर भी हम इनकी सपोर्ट लेते रहेंगे। जब इनसे कंसेंट मिल जाएगी, हमारे पास टाइम अवेलेबल होगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।